Good morning, students. Today in this video lecture, we will study about the fine structure of alkali spectra. So, students, as you already know about the Bohr-Sommerfeld model, that this model, it could not explain the double fine structure in alkali metals because they considered only the orbital motion of electron and not the spin motion of electron. So each member of the series in alkali metal is a closed doublet, while in alkaline earth it is a closed triplet. So if we study the doublet separation, then we observe following points, and these observations are based on experimental facts. Now the first point is the separation increases rapidly with increasing atomic number, that is in the order of lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium and francium. Within each element, p doublet are wider than d doublets of same quantum number n, and d doublets are wider than f doublets of same n. In sharp series, the splitting are constant, which shows that s level do not split. The fourth point is within an element, the separation decreases in going to higher member of the series offline. So our point 2 and point 4, it can be understood with the help of this diagram, which shows you the 2p, 2d and 2f doublets. So this diagram, it represents the relative term separation in your different series. Now next comes the selection rule for doublet. In the doublet series of atomic system, which contains only one valence electron, in that case the small letters S, P, D and F, they are replaced by capital letters capital S, capital P, capital D and capital F. Whereas the superscript 2, which is placed in front of each term, it indicates the uh, uh, doublet properties, which includes our S level also. So although S level is a single, S levels are single, but they show double nature when they are placed in a magnetic field. तो इसमें हमारी जितनी भी टर्म्स है P, D and F, all these are doublets. So such doublet structure in energy levels, it is observed for all atoms which are having a single valence electron in their outermost shell. और क्योंकि ये जो डबलेट की जो स्पेसिंग है, दिस इज वेरी स्मॉल, सो वी ऑल्सो कॉल इट एज fine structure. So fine structure or splitting of levels is due to the spin of the electron, and it was very well explained by scientists Gauss-Smith and Uhlenbeck when they proposed the vector atom model. So in this case, the spin magnetic moment of the optically active electron, it interacts with the internal magnetic field which is created due to the orbital motion of the electron. So this is known as spin orbit interaction, and due to this interaction, the orbital angular momentum L of the electron is coupled with the spin angular momentum S to form a resultant J. Then both the L and S, they precess around your
vector J, which is the total angular momentum vector. So this vector J or the quantum number J, it can have two values, either L plus half or L minus half, where the value of S is equal to half. So in case of S level, the value of L is 0. So S level will be a singlet level. Now we will see the complete notation of the levels which are given below. Here we have taken in a table on levels which are S, P, D and F. So for S level, value of L is 0, for P it is 1, for D it is 2 and for F it is 3. Now S is the spin, so and value of spin is half. Now multiplicity, formula for multiplicity is 2s plus 1. So if you substitute the value of half over here, the multiplicity will come out to be 2. And J is equal to L plus or minus S. So for S level, the value of J will it will be having only one value, because J cannot have a negative value. For P, you will be having two values of J, which are 3 by 2 and 1 by 2. For D, 5 by 2 and 3 by 2. And for F, it will be 7 by 2 and 5 by 2. So the full notation for S level will be 2S half. Here you will represent the multiplicity and here you will represent the J value. So again in this case it will be 2P 3 by 2, 2P half, 2D 5 by 2, 2D 3 by 2, and for F level it will be 2F 5 by 2 and 2F 7 by 2. Now in each doublet, the component corresponding to lower value of J, it lies deeper and it is more stable. So the more stable state is one in which the spin magnetic moment mu s of the electron, it lines up in the direction of magnetic field which is produced due to the orbital motion of the electron, and the direction of magnetic field is same as that of your angular momentum L. Now the spin magnetic moment is always directed opposite to S, because electron is carrying a negative charge. So this state for which J is equal to L minus S, or the state for which the value of J is lower, it is a more stable state. So the value of L plus S will corresponds to a higher value of J, which will be a less stable state, but some exceptions will always be there. Now this splitting of energy level of the alkali atom, it is due to the spin orbit interaction which is acting on the valence electron, and this is given by the formula gamma is equal to A dash J star square minus L star square minus S star square upon 2. This you have studied in your spin orbit interaction energy formula. So for S orbit, L is 0 and J will be equal to L plus minus S, or it will be having value J is equal to S, and for it the interaction energy it is 0. For P orbit, L is equal to 1, S is equal to half and J is equal to half and 3 by 2. So when J is equal to half, gamma value of gamma is minus A dash. When J is equal to 3 by 2, value of gamma is A dash by 2. So it shows that
a single p level due to spin orbit interaction is split into two levels, 2p3/2 and 2p half. Likewise, you can show in the same way you can show for your D level and F level. This figure is showing the splitting of D level and S level. Now next comes our selection rule. Now in order to distinguish between two fine structure levels having same N and L values, half integral subscript is used. Which means half integral subscript is denoted by J. So for transition of an electron from one energy state to another energy state, some definite selection rules are followed. The total quantum number n, it has no restriction, it can have any integral values, but delta L, it will be equal to, it will change by plus or minus 1, and delta J will change by 0 and plus minus 1. Now here we will consider the splitting of P, D and F levels, which are in accordance to the formula of spin orbit interaction. So here you can see the P level is split into two levels, 2p3/2 and 2p half, and from these level transitions is occurring in the level 2s 1/2. So this is also your principal series. So and the next series, here we have, this is your principal series, और यहीं पे हमने आपकी ये डिफ्यूज सीरीज शो करी हुई है, जिसमें ट्रांजिशन आपकी अकर हो रही है फ्रॉम डी लेवल टू पी लेवल. अब जो सीरीज का कॉम्बिनेशन आपका पी से एस में रहेगा, इस केस में आपको दो ही लाइंस मिलेंगी. वाइल इन ऑल अदर ट्रांजिशन, जिसमें ट्रांजिशन आपका पी से डी में हो रहा है या डी से एफ में हो रहा है, वी विल बी गेटिंग 3 लाइन्स कॉम्बिनेशन ऑफ. इसमें एक जो लाइन रहेगी, डैट जो फेंट लाइन रहेगी, उसको हम सैटेलाइट कहेंगे. तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बिटवीन 2p to 2s हो रहा है, इसमें इट विल गिव राइज टू योर फाइन स्ट्रक्चर डबलेट, whereas all other combination will give rise to a doublet and one satellite. एक लाइन आपकी फेंट लाइन रहेगी जिसको हम सैटेलाइट कहेंगे. तो जो आपका डबलेट है, it refers to the multiplicity of energy levels and not to the number of components in the spectral lines. तो ये जो भी आपकी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं और जो ट्रांजिशन हो रही हैं, दीज ट्रांजिशंस they follow the selection rule that delta L will change by plus minus 1 and delta J will change by 0 and minus 1. So how you can show this? Suppose we have the principal series, जिसमें भी आपने देखा जो ट्रांजिशन हो रही है, it is from 2p3/2 to 2s half, और दूसरी जो ट्रांजिशन है वो हो रही है 2p हाफ से 2s हाफ तक हो रही है. तो इसमें क्या है, जो L आपका चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, P लेवल से S लेवल में हो रही है, यानी कि इसके लिए L आपका 0 है और इसके लिए L आपका 1 है. तो जब आप डेल्टा L निकालेंगे, इट विल बी -1, 0 - 1, इट विल बी -1. और जो J की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी, J की वैल्यू इस केस में आपकी 1 आएगी और इस केस में आपकी
0 आएगी। ठीक है, तो ये जो आपका चेंज हो रहा है दिस इज इन अकॉर्डेंस टू दी सिलेक्शन रूल। इसी तरह से आप शार्प सीरीज में आ जाइए। शार्प सीरीज में क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन अकर करता है फ्रॉम एस टू पी लेवल, यानी कि ये आपका इस तरह से अकर होएगा 2s12, ये s लेवल हो गया और ये आपके 2p लेवल हो गए, 2p 3/2 एंड 2p हाफ। ये आपके इस तरह से अकर करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रही है आपकी, इट इज फ्रॉम 2s12 से 2p 3/2 पर हो रही है, और दूसरे केस में 2s12 से ट्रांजिशन जो हो रही है आपकी 2p हाफ तक हो रही है। तो इस केस में देखिए आपका क्या है, जब 2p हाफ 2p 3/2 ये आपका फाइनल स्टेट है और ट्रांजिशन आपकी 2s12 से हो रही है, तो इस केस में L आपका 1 है और इस केस में आपका L 0 है, तो 1 - 0 इट विल बी 1। इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, L की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 2s, J की जो वैल्यू निकालेंगे 3 - 2 - 1/2, ये आपकी कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 1 एंड दिस वैल्यू विल बी, ये आपकी 0 हो जाएगी। इसी तरह से ये आपका डिफ्यूज्ड सीरीज शो करी हुई है जिसमें ट्रांजिशन आपका होएगा फ्रॉम 2d 5/2 टू 2p 3/2, 2d 3/2 टू 2p 3/2, और ये रहेगा आपका 2d 3/2 टू 2p हाफ। इस केस में जो L की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी -1 और J की वैल्यू -1, 0 और -1। इसी तरह से फंडामेंटल सीरीज का आ जाएगा आपके पास। तो फंडामेंटल सीरीज में क्या होएगा, ट्रांजिशन आपकी F से D लेवल में अकर करेंगी। सो अगेन इसमें हम देखेंगे जो हमारी L की वैल्यू है इट इज चेंजिंग बाय -1 और जो J की वैल्यू है इट इज चेंजिंग फ्रॉम -1, 0 एंड -1। तो ये सारी वैल्यूज आपकी जो हैं दे आर फॉलोइंग दी सिलेक्शन रूल दैट L will change by +-1 and J can change by 0 and +-1। पर आप ये देखिए ये जो आपकी डिफ्यूज्ड सीरीज है उसमें एक ट्रांजिशन आपकी ये भी हो सकती है कि ट्रांजिशन कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम 2d 5/2 टू 2p हाफ, ये वाली ट्रांजिशन भी आपकी हो सकती है। पर इस केस में अगर आप J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 2, तो ये आपकी फॉरबिडन, this transition is forbidden or you can say this is not allowed transition। इसी तरह से F स्टेट में भी हम ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम 2f 7/2 टू आपका 2d 3/2। इस केस में भी जो हमारे पास J की वैल्यू आएगी it will be 2 and this transition is not allowed according to our selection rule। अब इसमें हम बात करेंगे आपकी इंटेंसिटी रेशियो फॉर डबलेट्स। The strongest line in any doublet arises from transition in which L and J change in the same way। स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन आपकी वो होगी जिसमें L और J आपके सेम वे में चेंज होंगे। जिन ट्रांजिशंस में L और J की वैल्यू आपकी सेम आ रही है उस केस में आपकी जो लाइन आपको मिलेगी उसकी जो इंटेंसिटी है दैट विल बी हाई। सो व्हेन देयर आर मोर देन वन सच लाइन in the same doublet then the line involving the largest value of J is strongest।
अगर आपको एक से ज़्यादा लाइंस मिल रही हैं तो उस केस में वो लाइन जिसकी वैल्यू जे के लिए ज़्यादा होएगी उसकी इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो सपोज करिए हम ये प्रिंसिपल सीरीज का केस लेके चल रहे हैं। इसमें ट्रांजिशन आपकी कैसी हो रही है, फ्रॉम 2p3/2 टू 2s½ एंड 2p½ से 2s½ ये हो रही है आपकी ट्रांजिशन। तो इसमें देखेंगे आपकी L की वैल्यू और J की वैल्यू इसमें आपकी सेम आ रही है जब ट्रांजिशन आपकी 2p3/2 से, सॉरी ये S वाला दिखाया हुआ है, ये वाली आपकी सीरीज 2p3/2 से 2s½ में जब ट्रांजिशन हो रही है उस केस में आपकी L और J की वैल्यू जो है वो सेम आती है विच इज -1। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, दिस विल बी हैविंग मोर इंटेंसिटी एज कंपेयर टू दी ट्रांजिशन विच इज अकरिंग फ्रॉम 2p½ टू 2s½ तो अगेन हम इसमें आपका दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें हम डिफ्यूज्ड सीरीज का केस लेके चलते हैं। ये वाली सीरीज आपकी आ जाएगी जिसमें ट्रांजिशन जो है आपकी इट इज कमिंग फ्रॉम 2d5/2 टू 2p3/2। इसमें L और J की वैल्यू आपकी -1 है। ये देखिए इसको हमने इस टेबल में भी प्रोजेक्ट करा हुआ है डिफ्यूज सीरीज को। इसमें देखिए आपकी 2d5/2 से 2p3/2, इस केस में आपकी L और J की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है आपकी -1 है, दे आर हैविंग सेम वैल्यू। और इसमें देखिए आपकी 2d3/2 टू 2p½ इस केस में भी आपकी L और J की वैल्यू सेम आ रही है विच इज -1। अब इसमें से इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होएगी, जिसकी J वैल्यू आपकी ज़्यादा होएगी। तो इस केस में जो है आपकी J की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। सो 2d5/2 टू 2p3/2 दिस विल बी हैविंग मोर इंटेंसिटी। इस तरह से 2d5/2 टू 2p3/2 ये हमने आपकी दिखाई हुई है, दिस इज हैविंग मोर इंटेंसिटी। उसके बाद आपकी आ जाएगी 2d3/2 से लेके 2p½ इसकी इंटेंसिटी इससे कम होएगी। और 2d3/2 टू 2p3/2 इसमें जो वैल्यू आएगी L की -1 है और J की 0 है, तो ये आपकी फेंट लाइन होएगी जिसको हम सैटेलाइट भी कहेंगे। अब आ जाते हैं आपके क्वांटिटेटिव रूल्स फॉर रिलेटिव इंटेंसिटी। So quantitative rules for relative intensity, these rules were discovered by your scientist Berger, Dorgello and Ornstein. तो इन रूल्स को हम डबलेट्स और मल्टीप्लेट्स में सभी में अप्लाई करते हैं। और इन रूल्स को हम कैसे स्टेट करते हैं कि the sum of the intensities of those lines of a multiplet which come from a common initial level is proportional to the quantum weight of that level, यानी कि इनिशियल लेवल। और ये क्वांटम वेट आपका कितना होएगा, इट विल बी 2j+1। दूसरा इसमें पॉइंट है, द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइंस ऑफ ए डबलेट which end on a common level is proportional to the quantum weight of that level, that is final level। तो इसमें देखिए हेयर इसमें हम आपका ट्रांजिशन का केस लेके चलेंगे फॉर योर डिफ्यूज्ड सीरीज। डिफ्यूज सीरीज में देखिए आपका जो ट्रांजिशन रहता है इट इज फ्रॉम 2d5/2 D लेवल से आपका P लेवल में होता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि
the sum of intensities of those lines which come from a common initial level, जो एक कॉमन इनिशियल लेवल से आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे कॉमन इनिशियल लेवल से कौन सी आ रही हैं, एक तो ये ए आ रही है और एक ये आपकी डी आ रही है। ये किसके प्रोपोर्शनल होंगी? दीज विल बी प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल। क्वांटम वेट हमने निकाल लिया है, वो कितना है? 2J+1। तो 2J+1 क्या है? इस केस में आपका 6 आ जाएगा, इसके के लिए आपका 4 आ जाएगा, इसके लिए आपका अगेन 4 आ जाएगा, एंड फॉर दिस यू विल बी हैविंग वैल्यू 2। यानी कि ये दोनों लाइंस आपकी दे आर कमिंग फ्रॉम दी सेम इनिशियल लेवल विच इज 2D5/2। तो इसके लिए जो हम निकालेंगे वो कितनी हो जाएंगी? आपकी सम ऑफ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? A+D हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे जो D है आपका, दिस इज ए फॉरबिडन ट्रांजिशन अपॉन दूसरा कौन सी आ रही है सेम लेवल से? B और C आ रही हैं फ्रॉम 2D3/2, जिसके लिए हमारा क्वांटम वेट कितना है आपका? 4 है। तो यहाँ पे D आपका 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 6/4, ये आपका 3/2 आ गया। इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइंस ऑफ ए डबलेट विच एंड ऑन ए कॉमन लेवल, इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल। यहाँ पे देखिए ये दो लाइंस आपकी एक लेवल पे टर्मिनेट हो रही हैं और ये दोनों आपके दूसरे लेवल पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो इसका क्वांटम वेट 4 है और इसका क्वांटम वेट आपका 2 है। तो इसमें क्या आ जाएगा? A+B अपॉन C+D। D विल अगेन इट विल बी 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 4/2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 2/1। तो अब आप इस 1 और 2 इक्वेशन को इस फॉर्मूले से, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। 2A इज इक्वल टू 3B+3C एंड 2, इसको आपने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, ये क्या आ जाएगी आपकी? A+B इज इक्वल टू 2C। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो यू आर गेटिंग 2A+2B इज इक्वल टू 4C। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C विल बी इक्वल टू 5B एंड A विल बी इक्वल टू 9B। तो इसमें जो A:B:C की रेशियो आएगी वो आपकी आ जाएगी 9:1:5। यानी कि जो लाइन आपकी A की जो इंटेंसिटी है वो आपकी सबसे ज़्यादा है। क्या रेशियो आई है? A:B:C की 9:1:5। जो लाइन आपकी A लाइन, the line which is coming due to transition from 2D5/2 to 2P3/2, it will be of higher intensity और इसकी J वैल्यू भी आपकी ज़्यादा है as compared to the line which is coming from 2D3/2 to 2P½ और लीस्ट इंटेंसिटी किसके लिए हो जाएगी आपकी? फॉर लाइन बी के लिए हो जाएगी, जिसकी इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पे आपकी 1 आ रही है। तो अगेन इसमें हम एक आपका थर्ड केस ले सकते हैं, व्हेन ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम, इसमें चलिए ये फंडामेंटल सीरीज के लिए आप निकालिएगा। फंडामेंटल सीरीज में आपकी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक अकर करती है? फ्रॉम F टू D लेवल्स। ये हमने क्वांटम वेट्स निकाल लिए हैं, 2J+1, ये 8, 6 और 4। इसमें देखिए अब स्टार्टिंग में हम पहले देखेंगे 2 लाइंस विच आर कमिंग फ्रॉम
एक कॉमन इनिशियल लेवल, तो कॉमन इनिशियल लेवल से हमारी कौन सी लाइन आ रही हैं, ये आ रही हैं अल्फा प्लस डेल्टा, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इक्वल टू दी क्वांटम वेट, जो हमारा आ जाएगा 8। और दूसरी कौन सी आ रही हैं, दूसरी जो लाइंस आ रही हैं आपकी फ्रॉम कॉमन इनिशियल लेवल, वो कौन सी आ रही हैं, ये आ रही हैं बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 6। तो इसमें आप निकाल लेंगे अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू 8/6, दिस इज इक्वल टू 4/3, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो डेल्टा है आपका, दिस इज अगेन योर फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब देखिए आप हम वो लाइंस देखेंगे विच आर टर्मिनेटिंग ऑन दी सेम लेवल। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आपका सेम लेवल पे टर्मिनेट हो रही हैं, और गामा और डेल्टा आपकी सेम लेवल पे इस पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो अगेन हम लिख लेंगे आपका अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 6, एंड गामा प्लस डेल्टा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 4। तो इनकी रेशियो निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 6/4, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा आपका आ जाएगा 20 बीटा और गामा आपका आ जाएगा 14 बीटा। तो अल्फा बीटा और गामा आपका रेशियो में रहेगा 20:1:14। तो जो लाइन आपकी विच इज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 2f 7/2 टू 2d 5/2, इट हैज मोर इंटेंसिटी। ये इस वाली लाइन की आपकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी फॉर ट्रांजिशन फॉर 2f 5/2 टू 2d 3/2, और जो ट्रांजिशन आपकी 2f 5/2 से 2d 5/2 में हो रही है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो आपकी सब मिनिमम रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द intensity rules, selection rules for doublets.